it is very less about cracking any big giant and more about what really happens behind the scenes. Okay. One thing definitely changes, that is your CTC. Obviously. And what never changes is the engineering. Engineering remains the same. तो engineering वही होता है जो आप पिछली कंपनी में कर रहे थे, वही डेवलपमेंट आपको नेक्स्ट कंपनी में करना है. टूल्स बदल जाते हैं, इन्वायरमेंट बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, बट अल्टीमेट इंजीनियरिंग रिमेन्स द सेम. इफ यू आर नॉट फास्ट मूविंग स्टार्टअप, यू आर डेड. Correct. स्टार्टअप में तो सबसे पहला थंब रूल है, you have to be super fast. System design is the new DSA, right? System design is the new DSA, low level design is the new DSA. DSA मुझे लगता है 2 साल में खत्म भी होने वाला है. AI will not take your job. Yeah, this is Someone using AI will. 6 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि more than 30% ऑफ कोड हमारा AI से लिखा जा रहा है. 30%. Like कितनी बड़ी कंपनी, हजारों लाखों इंजीनियर्स है ना वहाँ पे. नाम से ज़्यादा you are more identified with the company or the tag you have. अगर वही कॉन्ट्रास्ट में देखो, जेनजीज और अल्फास वो छोड़ के जा रहे हैं, उनको 50,000 की नौकरी चलेगी, बट उनको सुकून चाहिए. So I have this question in my mind. This is about clarity over knowledge kind of question. So a lot of students are actually at the same spot. So I would like you to start your journey from day zero, right? How you'll go about things. आप अपना करियर वापस से कैसे टेक में सोचोगे कि यार ऐसा कुछ करेंगे. Hey everyone, so we have Anubhav with us. He's a good friend of mine. He works at Google, and we have Anubhav here, not to discuss, by the way, that how to crack Google and Microsoft. Obviously, we have a lot of videos around that. You can watch those videos to understand how to crack Google. But this series is more about having a talk around tech and discussing tech, I would say. It is very less about cracking any big giant and more about what really happens behind the scenes. So we have Anubhav. Welcome to Sharians. Thank you for really happy to have you here, and I believe हम इस वीडियो में बहुत सारे insights हमारे audience के लिए ला पाएंगे. Definitely. A lot of students are watching us, like few thousand can go to, I don't know, like few K views, big numbers, but yeah, discussing tech would be fun for next 30-40 minutes. All right, let's go. So Anubhav, I got one question that is around this. You have worked for I think 3 companies, I believe. Yeah, 3-4 companies. 3-4 companies, right? And can you name us? Amazon, Walmart, few startups. Yeah. And now at Google. And you also having a chat around that you did some CTO role somewhere? Yeah. For a very early stage startup, we can say pre-seed level. Yeah. And my question is around this. When somebody goes from this company to that company, and they are not just startups, they are big giants, I think a lot of things change in the way you see things, engineering, and the solutions and priorities. I would like to know more on what really changes behind the scenes and how the approach changes. Is it and even my question is, does anything change? First question is that, does anything change when you move to one company from one company to another company? And if it does, what it looks like? Okay. One thing definitely changes, that is your CTC, obviously. And what never changes is the engineering. Engineering remains the same. तो engineering वही होता है जो आप पिछली कंपनी में कर रहे थे, वही डेवलपमेंट आपको नेक्स्ट कंपनी में करना है. टूल्स बदल जाते हैं, इन्वायरमेंट बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, बट अल्टीमेट इंजीनियरिंग रिमेन्स द सेम. बहुत ज़्यादा जो चेंज होता है कंटेक्स्ट, क्योंकि पूरा बिजनेस शिफ्ट होता है. लेट्स से मैं अमेजोन में था, अमेजोन में मैं काम कर रहा हूँ अमेजोन डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे आपका जो क्लाइंट है, जिस बिजनेस के लिए आप जो अर्न कर रहा है आपका टीम, जिस पैसे वो अलग है पूरा, पर्पस ही अलग है. इसमें वी आर केटरिंग टू फुलफिलमेंट सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. तो माइंडसेट अलग होता है जब हम बनाते हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका यूज़ केस अलग होता है. ऑब्वियसली बिजनेस यूज़ केस बहुत डिफरेंट होता है. फिर जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो, फिर मैं जब नेक्स्ट कंपनी में गया, दैट वाज कंप्लीट न्यू शिफ्ट. पूरा प्रोडक्ट चेंज होकर हेल्थ केयर में आ गया था मैं. तो फिर वो अलग बिजनेस डोमेन समझना पड़ता है. हेल्थ केयर में चीज़ें कैसे, टॉकिंग अबाउट वॉलमार्ट? नहीं, हाईलैब्स के बाद मैं फिर वॉलमार्ट पे आया. अगेन इट वाज एन ई कॉमर्स. मैंने अमेजोन में ई कॉमर्स साइट में नहीं था मैं, बट दिस वाज walmart.com, विच इज़ अ मार्केट प्लेस. तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था ई कॉमर्स साइट के लिए. सो अमेजोन वाज योर फर्स्ट कंपनी? Amazon was my first company. उसके पहले कुछ स्टार्टअप्स में मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए थे अपने मास्टर्स में, like in 2-3 companies, but I think those are irrelevant. Okay, so when we talk about startups, the kind of tech happens there. When we go to some large scale companies,
So I believe the way it is written changes a lot, Yeah, definitely. and those microservices, monolithic, and tons of that tech, jargons. I would like you to speak on this. What changes, and at what scale it changes? वेरी फेयर क्वेश्चन कि स्टार्टअप में हम जो टेक बिल्ड कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्टार्टअप, कि हम बहुत कम कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं. वी स्टार्ट विद वेरी वेरी लेस कस्टमर, मतलब स्केल छोटा है. तो जब स्केल छोटा होता है तो हमारा डेवलपमेंट स्पीड बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट सेम डोमेन में डिफरेंट स्टार्टअप से कम्पीट कर रहे होते हैं. हमें फीचर जल्दी रिलीज करने होते हैं, तो डेवलपमेंट साइकिल बहुत छोटी होती है. वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है. तो जब मैं इंटर्न था तो भी मैंने वीकेंड्स पे काम किया था, जस्ट टू शिफ्ट फास्टर, क्योंकि हमें हमेशा एक स्टेप आगे रहना होता है. तो ऊबर इज़ नोन कि बहुत बड़ी कंपनी है, बट स्टिल उनका स्टार्टअप कल्चर है. मतलब लिटरली वहाँ पे अभी भी स्टार्टअप कल्चर एज इन कि वो फोकस करते हैं कि फास्ट डिलीवरी करें. और उनके जो कॉम्पिटिटर्स, जैसे लिफ्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ ऊबर, उनसे पहले फीचर रिलीज़ करें. अगर ऊबर को पता चला है कि लिफ्ट किसी फीचर पे काम कर रहा है या रोल आउट होने वाला है, कुछ ऐसा टॉपिक में आता है, दे जस्ट deprioritize everything and इसको शिप करो, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग कंपनी. सो टोटली डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट, कल्चर कैसा है कंपनी का. बट स्टार्टअप जनरली वर्क्स लाइक दिस कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी शिप करनी है. देयर इज ऑलवेज डेडलाइन ऑन योर हेड कि अब 25th है तो 25th को चाहिए. इट शुड बी जनरली अवेलेबल टू ऑल द कस्टमर्स. बट बिग टेक जाइंट्स में ऐसा नहीं होता. लेट्स इफ यू टॉक अबाउट गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उनका क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. करेक्ट. अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो दैट्स इम्पैक्टिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. वेयर यू कंपेयर विद द स्टार्टअप जहाँ पे यू कैन मेक मिस्टेक्स क्योंकि कस्टमर इम्पैक्ट छोटा है. करेक्ट. मतलब ऑब्वियसली द स्केल इज स्मॉल, एंड सिंस डेवलपमेंट स्पीड ज़्यादा है तो कई बार तो प्रोडक्शन में ही डाल के टेस्टिंग करते हैं कि लेट यूजर गिव द फीडबैक. कुछ गड़बड़ होगा तभी फिक्स कर देंगे. बट यू कांट डू दिस इन बिग कंपनीज. बहुत सारा डेवलपमेंट साइकिल होता है. यू डू द टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग, अलग अलग स्टेजिंग में टेस्ट होता है. मतलब प्री प्रॉड, देन इन द प्रॉड से भी पहले हम बहुत स्लो रिलीज़ करते हैं. मतलब 1% ट्रैफिक में देते हैं कि 1% सिर्फ देंगे. लेट्स से 1 मिलियन कस्टमर है, 1 मिलियन का 1% ही सिर्फ देख पा रहा है वो फीचर. विल टेस्ट ऑन दैट, देन स्लोली रिलीज टू एवरीवन. छोटा सा भी, लेट्स से एक बटन चेंज भी है तो भी ऐसे जाता है वो, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. तो इम्पैक्ट डिसाइड करता है कि आपका डेवलपमेंट साइकिल कैसा होने वाला है. मेरे नज़र में ऐसा रहता है. और मतलब अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही जनरल ट्रेड देखा है कि लेसर द इम्पैक्ट विच इज़ मोस्टली स्टार्टअप्स unless until they become unicorn, वो चीज़ें स्लोली शिफ्ट आता है डेवलपमेंट में. बिकॉज अब आप उतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते कि आप सीधा प्रोडक्शन में टेस्ट करो या अपने टेस्टिंग कम की. जैसे यूनिट टेस्ट नहीं किया. बहुत सारे मैं जितने भी स्टार्टअप्स में काम किया यूनिट टेस्ट लिखते ही नहीं था हम, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था. अब यूनिट टेस्ट लिखेंगे बैठ के कि कोड शिप करें, और वो सीधा QA टेस्ट करता था और सीधा आगे जाता था प्रोडक्शन में. बिकॉज यू हैव टू शो योर कस्टमर्स, योर इन्वेस्टर्स कि हमारे फीचर से ही हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं. वी आर वेरी फास्ट. इफ यू आर नॉट फास्ट मूविंग स्टार्टअप, यू आर डेड. करेक्ट. स्टार्टअप में तो सबसे पहला थंब रूल है, यू हैव टू बी सुपर फास्ट. अगर आप फास्ट नहीं हो, इफ यू आर नॉट फास्ट इन डिलीवरिंग योर फीचर्स, और आप कस्टमर को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, उनका अटेंशन, इंप्रेशन, ये सब नहीं मिल रहा आपको आपके से, तो यू आर डेड मैन, यू आर ऑलरेडी डेड. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खाने के लिए आपको. ऑब्वियसली इंडिया में तो आपसे देखा ही हुआ कि जनरली जितने भी स्टार्टअप्स है दोज आर कॉपीड फ्रॉम US. इवन जोमेटो, स्विगी भी कॉपीड है डोडैश का. तो ऊबर का कॉपी यहाँ पे रैपिड वन में आती, मल्टीपल्स हैं. तो एंड वंस यू हैव टू कम्पीट विद सच बिग कंपनीज, देन बहुत अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्टर देन दोस. मतलब ऊबर से पहले रैपिडो में फीचर होना चाहिए बाइक का, जो कि था. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. और आई थिंक कस्टमर इम्पैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कस्टमर ऑब्सेशन बहुत होता है बिग कंपनीज में. लाइक गूगल विल नेवर डू एनी मिस्टेक दैट कैन लीड टू, लाइक उनका लॉसेस भी उतना बड़ा है ना. मतलब एक छोटी सी गलती और न्यूज़ में आ गया और उनके शेयर्स गिर जाएंगे. बट ऐसा स्टार्टअप्स में नहीं है. तो आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स. Correct. Let's move to the next one. So that is a lot about this self-worth question. Honestly, I don't really ask these questions because I myself never wanted to create a podcast around life and things. It's a lot about tech and life in tech. But I believe I've seen a lot of your LinkedIn posts lately, and I believe those scream that this question should be there. That's why I really want to ask this. So when somebody works, in a company, they could be founders, they could be, top tier employee somewhere,
you know, in big giants, and the company is big and it has a lot of reputation out there. So the person is not known as themselves, and they're known with the tag of that particular company. Makes sense. Have you felt anything like that? Yeah, I would say since I joined Google, I've been identified कि तुम गूगल में जॉब करते हो, तुम वही हो ना, गूगल इंजीनियर ज्वाइन. Yeah. मतलब नाम से ज़्यादा यू आर मोर आइडेंटिफाइड विद द कंपनी और द टैग यू हैव. Correct. नॉट जस्ट गूगल बट बहुत सारी से बड़े हैं, मेटा, अमेजोन, Yeah. फैंग कंपनीज, मैंग कंपनी. एंड आई थिंक दिस इज ओनली दिस जनरेशन, द मिलेनियल्स आर द कर्स जनरेशन जो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड है अपनी जॉब से. मतलब द जॉब, द CTC, 7-digit salary, the kind of perks, the flexibility or benefits, जो भी है, like too much obsessed. अगर वही कॉन्ट्रास्ट में देखो, जेनजीज और अल्फास वो छोड़ के जा रहे हैं, उनको 50,000 की नौकरी चलेगी पर उनको सुकून चाहिए. देखा होगा ना इंस्टाग्राम Yeah, पे I've seen. वो कैसे रिजेक्शन ईमेल्स Actually, डालते कल हैं. तो मैंने देखा कि like there was a reel जिसमें बंदा कह रहा था कि मेरा मन नहीं लग रहा है. मन क्यों नहीं लग रहा है मुझे हाँ. नहीं पता, बट मैं अभी कंपनी छोड़ रहा हूँ. एग्जैक्टली. कैन वी इवन थिंक दिस? मतलब वही मैं भी नहीं सोच सकता कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा है इस प्रोडक्ट में, काम नहीं अच्छा लग रहा, विच वॉज इन माई इनिशियल करियर, आई नेवर हैड दिस कि मैं जॉब छोड़ दूँ और फिगर आउट करूँ क्या करना है. नहीं यार, क्योंकि हमारा जनरेशन ऐसा था कि हमने अपने पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल में ग्रो होते देखा है. Correct. तो द काइंड ऑफ मेंटालिटी यू स्टार्ट सेटिंग वो आपके चाइल्डहुड से आता है. बट जेंजी जैसा देख नहीं रहे, वो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर्स को इंडिपेंडेंटली काम करते देख रहे हैं, घूमते देख रहे हैं, चिल करते देख रहे हैं, तो उनको स्ट्रगल ही नहीं पता. What you see, what you become. व्हाट इज व्हाट टू बिकम. तो आई वोंट से कि कर्स्ड है, बट है इन दिस सेंस, बट आई थिंक इट्स फाइन. Yeah, actually, every generation Yeah. has something which is newer as compared to the older one, and इट्स बेटर. and it's better. Yeah. Yeah, that is true. And when we talk about this, my question was slightly more into this. जब आप अपने, like my question was around this. जैसे somebody see कि ये बंदा गूगल में काम कर रहा है और Makes sense. he is a big guy, revenue and all of that, right? A founder है XYZ. So दूर से ऐसा लगता है इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. मेक सेंस. You getting me what I'm trying to say, right? And भगवान काश मैं ऐसा बन जाऊं, मैं एक बार गूगल में पहुंच जाऊं या मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. एटलीस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड से ये बहुत बड़ा झूठ है. बहुत बड़ा स्कैम, बिगेस्ट स्कैम. राइट. एंड आई गॉट योर आंसर बाय द वे, बट स्टिल क्या आप एग्री करते हो कि बहुत ज्यादा फर्क होता है? क्योंकि लोग क्या नहीं समझ पाते कई बार, इट्स नॉट जस्ट कि आप गूगल में काम कर रहे हो, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसके बाद भाई आपकी लाइफ है, आपकी वाइफ है, सब सही नहीं चल रहा तो वहाँ प्रॉब्लम है, बच्चे हैं वहाँ सही नहीं चल रहा तो वहाँ प्रॉब्लम है, लाइक आपकी खुद के पर्सनल हेल्थ इश्यूज हैं तो वहाँ प्रॉब्लम है. सो लाइफ सिर्फ गूगल या लाइफ सिर्फ वो नहीं है. अभी आप जो देख रहे हो वो ये है कि अभी आपके पास करियर नहीं है या आपका कोई गोल है, वो अभी तक हुआ नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि यही हो जाएगा तो बस हो जाएगा सब, बट एक्चुअली उसके बाद वापस बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस कोट. मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था, मैं बंदे का नाम भूल गया, बट the quote was around this: I want everyone to make money and everyone to become rich because I want them to know that that was not the answer. कि आपने खूब पैसा कमा लिया, आप रिच बन गए, फेमस हो गए, और हर किसी को लगता है कि वो आंसर है. तो मैं चाहता हूँ कि सब पैसे कमा लें, सब रिच बन जाएं, ताकि उन्हें पता चले कि वो आंसर नहीं है. नहीं सर. Do you agree with that? Yeah, definitely, man. This is like no bullshit. Like यही है, यही सत्य है कि the real happiness is always within us and we are trying to find it outside the world. Like हमारे बाहर. तो मैंने रिसेंटली अपने वीडियो में बोला था अपने चैनल पे अनुभव टेक में कि you are not your offer letter, you are not your company tag, you are not your CTC, you are what you have learned so far. तो इससे मतलब मेरा ये है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो ये नहीं कि आज हम गूगल में जॉब करते हैं, वो ये कि हम गूगल में पहुंचे कैसे, क्या मशक्कत करनी पड़ी थी, करेक्ट. कितनी दिन रात की मेहनत, जो कि किसी को नहीं दिखती है. बिल्कुल ट्रू है. लाइक यूपीएससी रैंक में ना आती है किसी की, तो वो 10 जाके बोलता है मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, बट वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता कि उसने कितनी रातें बिल्कुल सही बैठ के अपनी पढ़ाई करके, उसकी आँख डार्क सर्कल्स उसकी पढ़ाई की वजह से, ना कि फ़ोन चलाने की वजह से. करेक्ट. तो सबको चकाचौंध की दुनिया दिखती है, बट उसके पीछे का जो हार्श ट्रुथ है
विच इज़ ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कोई सुनना नहीं चाहता. मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें सुननी है, सिर्फ अच्छे बेनिफिट्स बता दो मुझे. सबको गूगल में जाना है, बट गूगल के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो नॉट जस्ट गूगल, एनी बिग कंपनी दैट यू ड्रीम ऑफ. एक तुम्हारी ड्रीम कंपनी एक स्टार्टअप भी हो सकती है, खुद का स्टार्टअप बनाना भी हो सकता है. करेक्ट. ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम योर हार्ड वर्क. मतलब अगर तुम 12-15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, अगर तुम 12-15 घंटे काम करने के बाद अलग से टाइम निकाल के स्विच की तैयारी, मतलब प्रिपरेशन नहीं कर रहे इंटरव्यू स्विच की, तो कैसे होगा? लाइक पीपल कम्स टू मी कंप्लेन कि यार तुम कैसे कर लेते हो अनुभव, तुम तो यार हर 2 साल में आराम से स्विच कर लेते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में करके, स्टार्टअप में भी कर लिया, कैसे कर रहे हो? तो उनको लगता है शायद मैं बहुत आसानी से कर ले रहा हूँ. मेरे लिए तो ये शायद बाएं हाथ का खेल ऐसा जैसे तो कहावत है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है. मतलब मैं अपने कॉलेज मैं कॉलेज से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहा हूँ. मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट जीनियस नहीं बोलूँगा खुद को. कॉलेज टाइम की बात है, जब मैं ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में, मास्टर्स की बात है, ग्रेजुएशन में कुछ खास उखाड़ा नहीं, मास्टर्स में लगी यार करना था कुछ, पर ग्रेजुएशन के बाद कुछ 25,000 की नौकरी लगी थी. एंड देन आई फाउंड कि नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक्स करके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ लिया और कंप्यूटर साइंस तो पढ़ा ही नहीं, और मेरे बाकी सारे दोस्त कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे. आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन माई ग्रेजुएशन, बट मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था. सो डैम कि मैं सिर्फ यही करूँगा, मुझे फिजिक्स पसंद है, मैं यही करने वाला हूँ. और आई गॉट द आंसर कि इसमें तो जॉब ही नहीं है भाई. मेरी तो स्कूल में ही जो कॉलेज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आती थी, जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती थी, उसी कंपनी में प्लेसमेंट हुई है मेरी 25,000 की. यार मैं तो बड़े ख्वाब देख रहा था, मैं तो बड़े डिल्लू में जी रहा था. नहीं यार, आई हैव टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी. और ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, यू हैव टू फाइट अ लॉट कि नहीं यार मुझे मास्टर्स करना है और पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इतने से तो नहीं होगा. देन आई रियलाइज्ड कि सिर्फ कोर्स और अपना ये सब पेपर्स भी पब्लिश किए थे मैंने, इससे तो घर नहीं चलने वाला. आई हैव टू डू रियल शिट कि हवाई कंप्यूटर साइंस करते हैं. और उस टाइम बूम भी था, लाइक सब पागल थे बीटेक. Which year we talking about? दिस इज 2019 व्हेन आई ग्रेजुएटेड. Okay. फिर मास्टर्स के लिए मैंने गया कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे मैं घुसा और कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इतना पता था मुझे डीएसए करना होता है, ये सब पढ़ना होता है, सीएस फंडामेंटल एंड ऑल. मैं घुसा, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में भी मुझे कुछ नहीं पता था कि यार बहुत सारी चीज़ें, तब तक तो मशीन लर्निंग आ गया था और कंप्यूटर रिविजन, ना जाने क्या क्या लोग अलग अलग चीज़ें बातें करते थे, और मैं हमेशा ऐसे रहता शिट यार ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. बट आई न्यू वन थिंग इनसाइड में कि मैं गिव अप नहीं करता था, मैं सब सीख लूँगा ये सोच के मैं घुसा और सबके साथ बैठता था. फर्स्ट सेमेस्टर मुझे याद है, मैंने कुछ 20-30 हज़ार का कोर्स लिया था AML का, 6 महीने पूरा पीरियड वो अच्छे से किया, और फिर मुझे वो भी नहीं जमा. फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर से DSA करना स्टार्ट किया. मुझे सीनियर्स ने बताया यार ये सब मत कर, DSA से होती है प्लेसमेंट. तो मैंने 1 साल सिर्फ पूरा जितना टाइम बचा था, 2 साल की जो भी है, 2-2.5 साल की, सिर्फ बैठ के DSA किया. और मैंने इतना पागल हो गया था, मतलब ऑब्वियसली पैशनेट हो गया था. मुझे पता चला इसी से लगने वाली नौकरी, तो उसको ही मन से कर लेते हैं. जब आपको पता है क्या चीज़ से क्या मिलना है, जब आपको मतलब इनपुट और आउटपुट पता है, लेकिन सब बता रहे हैं चीख के और दिख भी रहा है, देन तो फिर भी आप नहीं करोगे, देन दैट्स लाइक आपकी अकल मारी गई है. करेक्ट. राइट. और जब सब सीनियर्स बता रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, और जिनकी जॉब लग रही है वो भी बता रहे हैं कि मेरी DSA ही पढ़ के जॉब लगी थी. 300 1 साल के अंदर मैंने 2,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए. मेरी कोड फोर्स से रेटिंग एक्सपर्ट हो गया. मैं लीड कोड पे 4 क्वेश्चन हो जाते थे. और बाय एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बट उसके पीछे का मैं बताता हूँ, मेरी आंखें 30% ड्राई हो गई थी. कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, वो हो गया था मुझे. आज भी मेरी आंखें 30% ड्राई. मेरे बैग में भी आई ड्रॉप रखी हुई है, दिन में 2 बार डालता हूँ. तो वो मैं किसको बताऊँ जाके कि मैं पागलों की तरह 12-12 घंटे बैठ के पढ़ता था. मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके जाके वहाँ बैठ के पढ़ता था कि नहीं PG में रहूँगा तो लोग दोस्त खींच लेंगे, चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, घूमो एंजॉय करो. और मैं खुद को पूरे टाइम बिजी रखता था. मतलब मैं सिर्फ PG ही तब जाता था जब मुझे सोना है, सोने जा रहा हूँ. मुझे पता कि यार जब मुझे पता है और मुझे जॉब चाहिए और मुझे फाइनेंशियल नीड भी होती है, एक टाइम पे आपको सब कुछ साइड करके आपको सोचना होता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. और जब आपने कदम रख ही लिया है तो फिर वही है, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप और भी कुछ सोच सको. बट दैट वाज माय डिसीजन कि मैं मास्टर्स करूंगा और मैं एक अच्छी जॉब लूंगा. So you say about DSA, right? Like, so is it still the same? Like, No. Yeah. ये 2020-21 की बात है, आज 4-5 साल बीत चुके हैं. System design is the new DSA, right? सिस्टम डिजाइन इज अ न्यू DSA, लो लेवल डिजाइन इज अ न्यू DSA. DSA मुझे लगता है 2 साल में खत्म भी होने वाला है, Correct. क्योंकि मेटा ने रिसेंटली अपना AI राउंड भी डाल दिया. लाइक तुम AI यूज करो और सॉल्व करो. Correct. नाउ दे वांट टू सी कि हाउ गुड यू आर इन AI एडॉप्शन.
तुम Yeah. कितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, तुम कितना अच्छा कंटेक्स्ट कलेक्ट करते हो, आर यू ए रियल एआई इंजीनियर फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि आगे वाले टाइम में हो सकता है कि पता नहीं एजीआई आएगा कि नहीं आएगा, बट सब एक अच्छे एआई इंजीनियर तो बन सकता है. मतलब ऑल द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे कैन लर्न कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, रैक कैसे बनाते हैं, एजेंटिक एआईस कैसे बनाने हैं. Interestingly, we in case you already know about it, but Yeah. still, like at Sharians, we have a lot of students जिनको हम सिखाते हैं, right? So we do teach all of this, and we have also added this the thing which you're talking about, meta. The meta Yeah. people say like, here's the AI around, you have to prompt and then get shit done, right? Yeah, makes So we have a very similar thing over here at Sharians. Like हमारे boot camps होते हैं in Bhopal. Those are the Codex and Coder boot camps. So जो अभी recently चालू होने वाले हैं, हमने उसमें AI adoption के लिए वो चीज़ें डाली हैं, and RAG से लेके everything, all of those. I would like to show you this syllabus. makes sense. Because Let's go through it, man. हाँ, so I just want, मेरे को याद आया कि I can show this to you. So can we have the syllabus over here? Yeah. So just go through this. So हमने यहाँ पे like beginners से cover किया हुआ है, like everything. We have everything, right? From the start till the end. And the main funda behind this was कि एक student जिसको कुछ नहीं आता, अगर he comes or she comes, तो वो भी सीख सके, till somebody who knows something, वहाँ तक. Right, so we have covered everything, like agentic AI से लेके RAG, AI, everything, generative AI, everything. So I just want you to go through this and tell us, if somebody knows all of this, learns all of this, will he or she get a job, or we can say, is that particular candidate relevant enough in 2025 and 2026? Sure. Just take it. At least heading is very powerful. Like job ready AI powered code. And you have Gen AI, DevOps, AWS, aptitude and reasoning, which is really important nowadays, क्योंकि सब GPT करके खुद का रीजनिंग बिगाड़ती हैं. वो अब मॉडल की रीजनिंग यूज करते हैं, बल्कि जो हमारे पास है उसको नहीं यूज करते. नाइस, गुड. लाइक आई थिंक जिसको जीरो नॉलेज है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है. आई कैन सी हाउ इंटरनेट वर्क, वेब 1.0 से 3.0. सुपरमैन. आई थिंक द स्टार्ट गिव्स द फंडामेंटल कि आपको क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे क्यों हो, करेक्ट, और आप क्या सीखने वाले हो, ये इंटरनेट की दुनिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे रेवोल्यूशंस आए थे. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेरी लाइक आई थिंक +1, ये बहुत ज़रूरी है. लोगों को ये पता चलना चाहिए कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, और क्या आर्किटेक्चर होता है, MVP, ये सब. ऑल आई थिंक MVC, ये सब आई कैन सी इट्स हियर. इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग लोग बस ऊपर से जानते हैं. इंटरनली TCP UDP में डिफरेंस क्या है वो आज पूछो तो शायद लोग सोचते हैं. I think which is good. HTTP, makes sense. Yeah, I think fundamental is also cool, like HTML, CSS. Everything. Yeah, it's a very long one, so you can scroll. Yeah, makes sense. I think JavaScript very important if you're into MERN stack. I want to see the AI part. So you just go through it, and after later you can give us a comment on that. Sure. Okay, you guys are also teaching database optimizations. Yeah. Super, like indexing and all. Correct. Super cool. Very, very important. The ideation was like, give almost everything you need to build somebody a real engineer. Even I would like to tell you the way education is happening here at Codex and Coder. Would like to hear that? Yeah, please go ahead. Yeah. So first of all, like how is it? It's super cool, man. Super cool. I would love to know how you're actually integrating generative AI into this. Like, yeah. So we have an instructor with us. His name is Ankur, and he does this part like for us, like generative AI and DevOps part. He does this, and we have many instructors who deal with teaching all of this, including me. I'm not actually involved in that Gen AI part. We have a lot of instructors. वो सारे लोग students पे मेहनत करते हैं for 3.5 to 4 months. Be it our online courses, be it our offline boot camps. The question I have is, somebody who knows all of this, because I really wanted to ask you this, because you're someone who's working there, so you know more about industry and what things are going. Do you think they are relevant in 2025 and 2026, at least the upcoming year? I think definitely. I would say कि basics are really important. Basics तो पता ही होना चाहिए. You can't directly say कि यार AI है लो इससे बना लो. वो तो फिर like
डम होगा कि अगर खुद से डीबग करना है तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है सब कुछ. तो बेटर लर्न द बेसिक्स एंड मे बी देन यू कैन यूज AI टू आस्क फॉलो अप, Yeah. बिल्ड समथिंग एंड देन Correct. डीबग एंड फिक्स इट, Correct. जो कि आज के टाइम पे हो रहा है. Mm-hmm. एंड वी कॉल इट एजेंटिक डेवलपमेंट, कि आप Yeah. एजेंट्स यूज करते हैं. We're also teaching that. Yeah. And if someone is learning these things, they know the basics, they know how to use generative AI, they know how to fasten their development speed. पहले क्या होता था AI से पहले, मुझे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना, लेट्स से एक वेबसाइट ही बनानी है, तो मुझे आराम से, अगर इट्स लाइक 4-5 पेजेस वेबसाइट, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते थे. आज वो लिटरली 10 मिनट में हो सकता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ AI. Hmm. बट द क्वेश्चन इज, डू वी रियली नो कैसे हुआ वो? मतलब ये एब्स्ट्रैक्शन ना बहुत, Yeah. Correct. वेरी बिग Behind the एब्स्ट्रैक्शन, scenes, yeah. बिहाइंड द सीन्स कुछ पता ही नहीं मुझे. ये तो लाइक कि जो मुझे 2 हफ्ते के लिए मेहनत करनी पड़ती, अब वो सिर्फ 2 मिनट या 10 मिनट में हो गया. तो अब मुझे क्या करना है? ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हुए यार कि अब ऐसे ऐसे तो हमारी जरूरत ही नहीं है, अब तो AI ही सब कर देगा. Mm-hmm. ऐसा नहीं है. अभी भी AI कांट हैंड, आई थिंक नेवर इन नियर फ्यूचर AI वुड बी एबल टू हैंडल द स्केल, द बिजनेस लॉजिक, द बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि AI उतना ही समझता है जितना आप उसको बताते हो. तो AI को कोई कंटेक्स्ट नहीं है बिजनेस का. फिर लोग कहेंगे यार मैं दे देता हूँ कंटेक्स्ट, बट स्टिल कस्टमर आप कितने फ्लेवर्स दोगे उसको? Correct. मे बी नियर फ्यूचर यू कैन हैव SML वाले स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स कि आप अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मॉडल्स बना दो. एक कस्टमर क्लाइंट कस्टमर्स के लिए अलग, CSM कस्टमर सक्सेस मैनेजर के लिए अलग, कुछ अब्यूज टीम के लिए अलग बना सकते हैं, अलग अलग डेफिनेटली. बट जो ह्यूमन की साइकोलॉजी, जो ह्यूमन की थिंकिंग है, वो अभी भी कॉपी नहीं हो सकी. जो लोग बोलते हैं कि AGI आ जाएगा, लाइक 1 साल पहले ही डेविन करके एक सॉफ्टवेयर था. Correct. That was very false marketing actually. डैम, मैं डर गया था. मैं भी. आई थिंक सब डर गए थे. Yeah. और सब छोड़ो, OpenAI के जो CEO है सैम अल्टमैन, आई थिंक हाइप ऐसे ही बनी ही थी कि इसको यूज कर लो वरना तो तुम गई तुम्हारी जॉब. मतलब लिटरली हम कुछ क्रेजी ले आए और तुम्हारी जॉब खतरे में. अगर वो ये नहीं बोलते तो तुम देखते भी नहीं. लाइक इट विल बी अनदर Web3, या तो जो आया था बीच में चला गया, राइट, कि जस्ट द क्रिप्टो हाइप आई और चली गई. Correct. Correct. तो हाइप बहुत बड़ी बनी है. लाइक बबल तो मैं सबको दिख रहा है कि बबल, और वो खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि बबल Yeah. है. Mm-hmm. और AI से जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने सेट की थी वो खत्म हो गई है. मतलब जो डेविन बोल रहा था कि हमने SD1 क्रैक कर लिया, That's like insane actually. इनसे मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मतलब ये मतलब SD1 की जरूरत ही नहीं है. आई टेल यू वेरी लाइक रीसेंट वन, 6 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि मोर देन 30% ऑफ कोड हमारा AI से लिखा जा रहा है. 30%, लाइक कितनी बड़ी कंपनी, हजारों लाइक लाखों इंजीनियर्स है ना वहाँ पे. और 2 दिन पहले न्यूज आई है कि विंडोज 11 के जितने भी रिसेंट फीचर्स शिप हुए सब बगी हैं. You won't believe me. The last guest I had, I won't, take the name, but I asked the same question actually, and he had a very different opinion. He was more into this that there's no way that AI can't do everything, and I was like, there are a lot of things AI can't do, and at scale, a lot of times it creates buggy features. There are a lot of bugs, right? And but he had a very different opinion. So when I see 2 different, almost 360 degree or almost 180 degrees opinions in just 30 minutes, so that brings a very I'll tell big you. contrast. I'll tell you why there are 2 kind of mindset here. People who are putting big bets on AI, कि अब AI को करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया. Most of the companies are investing, like I'm not saying कि AI is of no use. AI is definitely Yeah. और मतलब मैं जो काम 1 महीने में करता था मैं 3 दिन में कर लेता हूँ. Same here. Yeah. राइट. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे. व्हाट आई एम सेइंग कि जो हाइप बना है वो फॉल्स था. और प्लस अब पहले से ज़्यादा ये अब हायरिंग हो रही है इंजीनियर्स की. अब तो ऐसे मतलब इट्स अ वेरी फनी, आई रिसेंटली फाउंड आउट ऑन लिंक्डइन कि वाइब कोडिंग क्लीनअप आर्किटेक्ट, Actually, जो पूरा वाइब कोड करवा दिया तूने इंजीनियर से, Right, वो मैं right. क्लीन करूंगा क्योंकि आई एम द रियल गाय जिसको पता है कैसे लिखते हैं कोड. स्केल की बात है. yes. And do you also think making a small feature that can be done straight up, but when you go for a very big scale, it becomes extremely difficult to do all of that with just AI. I'll give you a mental picture कि AI से पहले स्टार्ट पॉइंट हमारा बहुत ही नीश था, बहुत बेसिक था. मतलब हम खुद से, ये हो सकता था कि टेम्पलेट होते थे, HTML CSS लिखते थे, मतलब जो स्टार्ट पॉइंट हुआ करता था. मुझे कुछ भी बनाना, मेरा स्टार्ट पॉइंट बहुत नीश, बहुत बेसिक था.
AI आने के बाद वो स्टार्ट पॉइंट बहुत आगे आ गया, बट वो फिनिश लाइन के पास नहीं है अभी भी। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फिनिश लाइन के एकदम वो कि बस मुझे थोड़े बहुत ट्विक्स करना है, प्रोडक्ट इज रेडी। MVP चीज़ें बन सकते हैं, प्रोटोटाइप्स बना सकते हो, बट इफ आई से कि तुम्हें मिलियंस या इवन 100 के 10 के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है AI से, नॉट पॉसिबल। Honestly, I'm like, Hey. it's so contrast actually. Like, it's a big contrast. You can The use last yeah. guy I understand. and you, it's like 180 degree. I'm being so honest with you. What he was saying that he can do the whole app having thousands of users and 1,000, thousands, but what 1,000? 100K is also thousands. thousands, Yeah, few thousand, 10K. few thousands. Okay, with just AI and not touching even the code anywhere, right? And I was like, see, when you do this, when you actually create anything on a very low scale or on a very small scale, yes, now the new models are actually very fast and very accurate with creating things. Makes sense. But when you want to actually build the complete thing with architecture, with scalability, the kind of scalability you want for lakhs of users, I don't think we're still there. Not there. मैं बताता हूँ, लेगेसी कोड में अगर आप AI यूज कर रहे हैं, लाइक आप ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द folks engineers, they are working in some company, not everyone into startup, right? Yeah. Not everyone is building from scratch. Mhm. Very less % of people. Mhm. I'll talk about that as well. कोड बेस पहले से AI आने से पहले ही सारा कोड बेस लिखा था, मतलब AI आने के बाद हो सकता है बहुत Correct, तेज हम लिख रहे हैं कोड, correct, बट मोस्ट ऑफ द कोड वाज रिटन बिफोर Yeah. AI came. मतलब ऐसा तो नहीं Amazon 2.0 बन गया AI आने के बाद, कुछ अलग से तो नहीं हुआ ना, बस Yeah. डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो गई है, शिप फास्ट कर रहे हैं। लाइक अगेन हम हो सकता है कि स्टार्टअप कल्चर पहुंच गए जहाँ पे हम बहुत तेज कोड कर सकते हैं। And a question, or I'm sorry, I'm interrupting you, but do you believe AI writes some code that's buggy code? AI learns from the code which is available. Yeah. All of this buggy code is like public repo on GitHub, and you see all of that code. AI again trains itself from that buggy code. It writes more buggy code. It can become It's a loop. It's a loop, right? Do you agree with it? Partially agree with it, or you kind of agree with it? Like, पार्शली क्योंकि टोटली डिपेंड्स कि आपका जो मॉडल है वो कौन से डेटा पे ट्रेन हुआ है। Yeah. अगर वो पब्लिक रेपोज में है तो कौन बता रहा है कि वो सही है, और पब्लिक रेपो में तो फालतू चीजें भी बहुत सारी है ना, लाइक इफ मोर देन 50% ऑफ इंटेंट इज बुलशिट, Yeah. राइट? तो आप टोटली ऑन द ओपन डेटा ट्रेनिंग, आई थिंक यही डिफाइन करता है कि गूगल का जेमिनी क्यों बहुत अच्छा है एंड वर्सेस ओपन ChatGPT 5.2 जो आ गया एंड स्टिल नॉट वर्किंग मैन फॉर मी। Yeah. क्योंकि वो डेटा दैट डेटा डिफाइंस द ट्रेनिंग डेटा डिफाइंस कि आपका मॉडल का आउटपुट कितना अच्छा होने वाला है। In Google, you guys use AI to write code? Yeah, everyone. I think whoever is not using AI to write code, at least build faster, ship faster, those guys are outdated. There's a very famous quote: AI will not take a job. Yeah, listened. Someone using AI will. Yeah, I've heard that. Yeah. तो I'll tell कि AI का adoption कहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, which is the agentic AI. वो सारे वर्कफ्लोज जो मैनुअल और जो कि बहुत ऑब्वियस काम करना था, जो बहुत ही स्टैटिक था, इंटरनेट के एरा में आप पीछे जाओगे 2008 में भी जो बूम आया था .com, उसमें भी यही था कि हम जो बहुत ऑब्वियस था चीज़ें जो स्टैटिक चली गई थी, जो लोग मैनुअली कर रहे थे वो सब बदल गई। और कंप्यूटर भी आया था तब भी लोगों की बहुत सारी जॉब चली गई, यार अब तो चिट्ठी भेजने की जरूरत ही नहीं, अब तो ईमेल हो जाता है। तो ऑब्वियसली एआई ने भी वही डिस्ट्रप्शन लाया। Yeah. तो जो काम हम जबरदस्ती के 1 महीने में कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली वी टेक आवर टाइम एंड वी लर्न इट, क्योंकि हमें फिक्स ढूंढने के लिए भी फिक्स लर्न करना पड़ता है कि क्या है कैसे होगा, Correct. अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। Yep. क्योंकि हमें एग्जैक्ट रिलेवेंट सोल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढने के लिए भी 1 दिन लग जाता था। सही बात है। अब वो मुझे मिनट्स में मिल रहा है, तो वही सेम काम अब फास्ट हो गया ना, तो ऑब्वियसली जो गैप था वो एआई ने फिल किया। तो एआई हैज सोल्यूशन, मतलब उसकी ऑफरिंग बहुत अच्छी है। आई एम नॉट सेइंग कि एआई इज बेकार, और वो तो बहुत लाइफ इजी कर रहा है। इमेज जनरेशन मैन, सी आज मुझे मेसी के साथ फोटो की मतलब खींचने के 1.5 लाख रुपए देने की जरूरत ही नहीं है। मैं जेमिनी नैनो बना प्रो को बोलूंगा कि आप डाल दो मुझे उसके साथ, विद एनी सेलिब्रिटी, नॉट जस्ट मेसी। ये तो रिसेंट इवेंट था जो हुआ था अभी। तो एजेंटिक एआई से हम वर्कफ्लोज ऑटोमेट कर रहे हैं, which is the amazing part. In very big adoption. What exactly you work on? So I work in cloud part, Google का cloud part.
And I think most of the engineers, not just at Google, everyone, they use AI and they try to automate the workflows, at least the static workflows, जिसमें time consume होता था developers का. मतलब I think for every developer there is some part of their engineering activities जो day to day में करते हैं जो कि boring होती है, जो कि उनको लगता है यार ये कोई कर दे यार, ये क्यों करना पड़ रहा है मुझे, इतना static काम है. Very repetitive. अब when I have a solution for this, AI is a solution. एजेंटिक AI लिख दो, तुम्हारे लिए API कॉल कर देगा, तुम्हारे लिए ऑन कॉल का कुछ काम कर देगा. तो नाउ द टाइम यू आर लेफ्ट विथ इज द प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू. अब तुम उसको वहां इन्वेस्ट करो जहां पे तुम रियल प्रोडक्शन इशू सॉल्व कर सकते हो. करेक्ट. तो यू आर एक्चुअली लेस वेस्टिंग योर टाइम. तो AI इज ऑलवेज हेल्पफुल. AI तो हेल्प कर ही रहा है. आई विल टेल यू वेरी रीसेंट इवेंट. मैं बाय द एंड ऑफ द डे मेरा जो क्रोम टैब है ना 40, 50, 70 का पे 100 से भी ऊपर चला जाता है. फिर मुझे लगा यार मैं कैसे क्लीन करूंगा, तो कितना कॉग्निटिव लोड है मेरे ब्रेन पे. मैं सब पे जाके कैंसिल नहीं कर सकता, तो मैं जब पूरा विंडो ही हटा देता था. और फिर मुझे लगता शिट यार मैंने तो बुकमार्क नहीं की बहुत सारी चीज़ें, मैं पिन कर सकता था यार, मैं भूल गया. तो मुझे लगा यार मैंने आज तक क्रोम एक्सटेंशन नहीं बनाया था. मैंने इस पर वीडियो भी डाली है यूट्यूब पे अपने. मैंने आज तक क्रोम एक्सटेंशन मुझे पता भी नहीं मैनिफेस्ट फाइल लिखते कैसे. मैंने वाइब कोड कर दिया पूरा, और एंड प्रोडक्ट वर्किंग नहीं था मैं एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, बट मुझे भी कभी भी ऐसा आउटपुट नहीं मिला जो एकदम एग्जैक्टली सही चल रहा है. That is what I saying. कि 100% सही चल रहा है. देयर इज ऑलवेज 10-5% गैप जो मुझे ही फिल करना है. करेक्ट. एंड वो 95% फास्टर. दैट्स व्हाट आई से कि वहाँ AI आता है. बिल्कुल सही. वो 95% जो बॉयलर प्लेट टेम्पलेट है वो तो मिल रहा है ना AI से. तो उसके लिए मैं खुश होना चाहिए यार. एटलीस्ट आई एम फास्टर. मैंने 2 घंटे में बना दिया उसको. कुछ API इंटीग्रेशन सही से नहीं कर पा रहा था, डॉक्यूमेंट नहीं सही से पढ़ पा रहा था क्योंकि पता ही नहीं था उसको कि कैसे करते. तो मुझे चलना पड़ा, मैं डॉक्यूमेंटेशन देखा, फिक्स किया, फिर वाइप कोड किया, उसी से फिक्स कराया कि ये लो. मैं ट्रेन भी कर दिया मॉडल, चलो तुम सीख भी लो इसी बात, और कर दिया. और मैंने अपने लिए यूज केस के लिए अपने ही लोकल में चला के उसको एक क्लिक मारता हूँ, वो कंटेक्स्ट समझता है, पूरे ओपन टैब्स का ग्रुप कर देता है. एंड मैंने अपना पहला एक्सटेंशन जब बिल्ड किया था फॉर द क्रोम, आई थिंक एनीवे 2016 समवेयर, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. मेरे को 2 हफ्ते लग गए थे टू बिल्ड इट. एंड अभी इफ यू ट्राई टू डू द सेम थिंग इट्स लाइक 2 hours. So the difference is massive, and all of that is coming from AI. And we should appreciate this. Actually, yes. But the problem is when people say that there is no human intervention needed. Yeah. Nonetheless, like you're building this big or you're building so small, there's no human intervention needed. I have serious doubts on that. I have not seen anyone actually, building an app, let's say 500 files, so many controllers and services, and AI has not messed up anywhere. I have never seen such thing. Like at Shadings, we also do that. So this is called hallucination. क्यों hallucinate करेगा? Which is obvious क्योंकि humans भी hallucinate करते हैं. तो obviously अगर हम कुछ human level of intelligence पे लेके जाना चाह रहे हैं, obviously वो भी करेगा hallucinate. Ultimately it's just the prediction model, right? Yeah. हमारे दिमाग में हमें कुछ मैं जो बोल रहा हूँ next word भी predict कर रहा है, brain neurons से वो बाहर आ रहे हैं. correct. I have learned something from my past. मुझे इंग्लिश मैंने सीखी थी तो मैं तो बोल पा रहा हूँ, वरना मैं कोई और लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आ रही. सही बात है. Ultimately everything is just prediction. Yeah. But we are doing very smart and fast way. But Correct. Which is AGI, they call it. I'll ask this question to you. Whom do you trust most? Your guy who you know कि जो तुम्हारा डेवलपर है, और an agent, एक AI? The guy actually. I think question stops. Question. Yeah, कि actually. मैं obviously मैं अपना प्रोडक्शन का देना ही नहीं चाहूंगा. बिल्कुल. There is always a human intervention will be needed to bypass. That is what I was saying. Like you don't need so many humans, but you at least need few humans to actually run the thing. Exactly. Do you agree with that? I agree कि हमें बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब. क्योंकि जो काम अब हम करते थे 10 इंजीनियर्स को लेकर, वो शायद 5-4 इंजीनियर्स भी कर सकते हैं with the help of AI. So they need to be really really good. It's really good in terms of engineering कि आगे जाके they will be like, just imagine it, बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी डिपेंडेंसी, शायद मैनेजर की भी जरूरत नहीं है, AI मैनेजर आ जाएगा कि हम उसको जाके पूछेंगे, और एटलीस्ट AI इतना तो कर सकता है कि when I have enough right context वो कर देता है. But the second question will come to me यार कि अब jobs का क्या होगा? Actually, that is the question. Right. And before that, do you think now you need really really good engineers who know their things and who are really good at engineering, not just coding? Exactly. You're talking about not just the vibe coders. Yeah. We need the real engineers now. Yeah. More than ever. Actually, yes. क्योंकि AI बबल की वजह से हमने इतना सब कुछ मिस कर दिया है. And उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ने वाली है.
कॉस्ट का नहीं पता. आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन कि क्या कॉस्ट होने वाला है इंजीनियर्स का. अगर डिमांड होगा तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा मिलेगा. Do you think demand supply में reflect होता है? I'm the business guy, so I can clearly see that coming. Demand supply का game है. वो तो है ही. You don't get a lot of great engineers. Let's understand this. Meta wanted कि उन्हें कुछ अच्छे ML guy चाहिए. As far as I know, तो उन्होंने बहुत ही अनरियलिस्टिक नंबर्स पे लोग हायर किए. आई नो 100 मिलियन ऑफर दे रहे थे. 100 मिलियन, 50 मिलियन. आप ये सैलरी सुनते नहीं हो, लाइक ये क्या सैलरी है? सो ये लाइक सीईओ की सैलरी होती है. हाँ, सो लाइक व्हेन यू सी दिस इज बेसिकली डिमांड सप्लाई गेम. मुझे लगता है काफी हद तक अब इंजीनियरिंग में भी ये होने वाला है. वो जो होता है ना, टियर्स होते हैं जॉब्स के. आई तो एग्री. ये जो नीचे वाला टियर है ना, जिसमें आप एक नॉट सो बिग कंपनी बट एक स्टार्टअप जो खुद क्लूलेस है कि उसे क्या करना है, उनमें जो वेब डेवलपर्स, उनमें जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे, वो भी उस लेवल पे नहीं होते हैं अलॉट ऑफ टाइम्स. तो वो जो अर्ली एज स्टार्टअप के जो होते हैं जिनमें बहुत क्लैरिटी नहीं होती, आई बिलीव उनमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स बहुत ही कम प्रोग्रामर्स वहाँ पर रेलेवेंट रह जाएंगे या ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि वो स्टार्टअप्स भी रेलेवेंट नहीं रह जाएंगे. एटलीस्ट ये मैं देख पा रहा हूँ. एंड ये कहीं मिड से शुरू होगा कि यू नो दिस मच, यू हैव डन दिस मच, यू आर somebody जो खुद से सर्च करके XYZ करके ऐसे करके डिलीवर कर देता है, एंड उसको इस तरीके से भी कर देता है कि वो 10,000 लोगों पे प्रॉपरली चल रहा है. ओके, आप ऐसे हो, देन यू आर वेलकम. आई थिंक आई टॉकिंग अबाउट द 10x इंजीनियर्स जिनको बोलते थे कि आई वांट वन 10x इंजीनियर. जो ऑब्वियसली टीम में हर कोई 10x इंजीनियर नहीं हो सकता. करेक्ट. फिर वो बैलेंस नहीं रहेगी. तो वरना फिर हर इंसान अच्छा ही काम मांगेगा. तो Yeah. जो बेसिक वाला काम है वो कोई नहीं करेगा. तो there's always a hierarchy, SD1, SD2, SD3, SD4, प्रिंसिपल. उनका काम भी इसीलिए अलग अलग लेवल का होता है. प्रिंसिपल बस गाइड करता है, आर्किटेक्ट करके देता है, फिर इम्प्लीमेंट होने के लिए और नीचे जाता है, SD1 इम्प्लीमेंट करता है. तो वैसा ही हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कि बहुत ज़्यादा SD1 की जरूरत ना पड़े, क्योंकि SD2s वो AI से करा देंगे. करेक्ट. बट ऐसा कुछ ट्रेंड दिखा नहीं. मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन थी AI से, वही जो मैं डेवन की बात कर रहा था कि यू आई वुड से पॉइंट दिस कि मे बी एज एन AI इट्स ए जूनियर डेवलपर, स्टिल नॉट SD1, ए जूनियर डेवलपर इन इंटर्न. अभी भी इंटर्न या करेक्ट. कि आप वो सारे मोनोटोनस रिपीटेटिव टास्क आप ऑटोमेट करा लो AI से, एंड दैट इज डन. यू Very सेविंग true. टाइम एंड मे बी हायर मोर इंजीनियर्स टू वर्क ऑन रियल इश्यूज. Yeah. तो पहले भी ऐसे था कि जब चीज़ें बदली थी, रेवोल्यूशन आया था, तो नई जॉब्स आई थी. तो हो सकता है न्यू जॉब रोल्स आएंगे. मे बी AI इंजीनियर ऑलरेडी वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, ML डेवऑप्स, जनरेटिव AI स्पेशलिस्ट. तो ऐसी और न्यू जॉब्स बन रही हैं क्योंकि न्यू डोमेन एक्सप्लोर हो रहा है. तो पुराने कुछ जाएंगे और नए आएंगे. जस्ट इमेजिन दिस थिंग, अगर ये सारी बड़ी कंपनी हायरिंग करना बंद कर दें तो जो एक्चुअली में इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके पास पैसे कम हो जाएंगे. तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन कौन लेगा, अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? Very true. इट्स लाइक इकोनॉमी साइकिल. वो रिसेशन आ जाएगा. करेक्ट. और वो फिर होगा नहीं, क्योंकि ये सारी कंपनीज को पता है ये चीज़. ऐसा तो नहीं कि मैं ही बैठ के सोच रहा हूँ यार ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मेरी जॉब चली गई तो मैं तो अगर मैं जो भी 10-20-30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, फिर तो मैं ये सब और लग्जरी आइटम जिसको ये बेच रहे हैं, जिसको इतना बड़ा बना रखे हैं, जिस कंपनी पे चल रेवेन्यू, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा. फिर तो AI अल्टीमेटली इट्स ए ब्लैक होल. इस तरीके से भी सोचा जा सकता है. या अ लॉट ऑफ पीपल जो हमें देख रहे हैं इस वक्त वुड लव टू नो, व्हेन यू हैव सेड दिस 2 times, एंड दे वुड लव टू नो लाइक व्हेन यू से इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम AI के वो SD1 का काम कर लेगा बट इट फेल्ड या समवेयर लाइक दैट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन कि जो हाइप सेट हुई थी आज से 1 साल, एग्जैक्ट 1 साल पहले, जो मतलब नॉट जस्ट आई थिंक एक्सपेक्टेशन हमने गलत समझ ली होगी, या एटलीस्ट कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसे थे जो वाकई में हाइप में आने के लिए लाइक जस्ट टू यूज है. इवन मैं भी जिस स्टार्टअप के लिए काम किया था, नॉट जस्ट स्टार्टअप काम, एज इन की आई वाज CTO को फाउंडर फॉर कॉल myjob.ai. तो उसमें हमने भी वो AI को यूज़ करके लाइक वी created sort of Tinder for your job application. मतलब तुम बस अपनी प्रेफरेंस बताओ, we'll suggest you a job using AI. And why you have to spend a lot of time in figuring out the right job for you? And we are here for you. We'll give you the right job. Like exact matching percentage. कि भाई ये job तेरे से तेरे प्रेफरेंस के 100% मैच कर रही है, 50% मैच कर रही है. This job is not for you maybe. Give me top 100 jobs. मैं अप्लाई, या तो मेरे लिए तुम खुद ही अप्लाई कर दो मेरे लिए. मुझे भी क्यों अप्लाई करना है, तुम मेरे लिए ट्रैक भी कर दो. तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो अभी के टाइम पे नहीं था, वी ट्राई टू सॉल्व इट.
things didn't work out, so I'm back in Google. Way back, ये बहुत पुरानी बात हो गई. तो expectation obviously कई बार हम बना लेते हैं और कई बार हम interpret कर लेते हैं कि हाँ अच्छा हो सकता है, but I think it's very open in the market. सबको पता है कि AI कहाँ position कर रहा है खुद को. Yeah. Which I said multiple, which is agentic AI and small language models. Anybody who's learning system design? Yeah. Yeah, please go. Yeah. Yeah, so anybody learning system design, do you think that is something which we already had a chat about around that, but that is something which will be asked in most of the companies in future, Makes sense. and less of DSA and less of asking them to solve a question, but asking them to suggest an architecture for a particular service or maybe a particular app. So they'll be given a question statement, and that would be a scenario actually, and they'll be asked to a basic architecture, how they will manage n number of people on that particular app and n number of services. You're getting me, right? Yeah, I get So it. do you think that's coming? It's already here, not just coming. I would say कि Amazon का बताता हूँ. Amazon for SD2 role and above, DSA is now kept as the last one, and that too not a very high weightage. पर मतलब मुझे जितना पता चला कि वो तो अब फेल भी हो जा रहे हैं उसमें. मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए लेट्स से आपके DSA राउंड में. यू विल बी स्टिल, पहले था कि DSA पहले ही था, बट स्टिल फेल होने पे वो आगे भेज देते थे क्योंकि सब लोग DSA में अच्छे नहीं होते. कितना टाइम मिलता है आपको DSA पढ़ने? DSA लाइक डिफरेंट होल स्टोरी. आपको मेहनत करनी पड़ती है उसमें. पहले कॉलेज में आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत बढ़िया, वो आपको आगे काम है. जैसे मेरे को आज DSA नहीं पढ़ना पड़ता. आई कैन जस्ट सिट इन एन इंटरव्यू. मैं लिटरली गूगल के लिए DSA का ज़्यादा कुछ आज प्रिपेयर नहीं किया था. मैंने जस्ट वेंट ऑन किया, हाँ मुझे आता है तो ऑब्वियसली क्यों फ्रेट करना है उस पर. तो real development, real engineering is all about how well you understand the business. Correct. How well you understand the customer needs. कि कस्टमर को क्या चाहिए और हम क्या शिप कर रहे हैं, कितने जल्दी चाहिए और क्या बनाना है, क्या स्केल है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग. अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो आप रियल इंजीनियर हो. Yeah. और सिस्टम डिज़ाइन आई थिंक वहाँ हेल्प करता है जहाँ टेक्निकल पार्ट आता है. कि आप लेट्स से अगर आपको Amazon ही बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी डब्बे डिज़ाइन. कि मुझे ठीक है, मुझे लेट्स से मेरे पास 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ से कस्टमर मुझे कॉल कर सकता है, विच इज़ मोबाइल, टैबलेट और मे बी और डेस्कटॉप. जहाँ पे Amazon.com खोलेगा या तो अपना एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप खोलेगा तो मुझे एक्सेस कर सकता है. दीज ऑल यू डिफरेंट वेज क्लाइंट कैन कॉल यू, एक्सेस यू. फिर आता है कि हाँ यार ये जो रिक्वेस्ट कॉल लेट से उसने अपना प्रोफाइल पेज ओपन किया, तो अब जिसका प्रोफाइल का डेटा है आपको कैसे दिखाओगे. मतलब लेट से मिलियंस ऑफ यूजर एक साथ अपना प्रोफाइल पेज खोल रहे हैं. मिलियंस ऑफ यूजर्स जब सेल आती है तो एक ही प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं. रेस कंडीशंस होती है राइट, कि पहले लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना पड़ता है. वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है. वो कैसे करोगे आप? अगर आपको नहीं पता कंकरेंसी लॉक्स लगाना डेटाबेस में कि जो यूज़र पहले आया उसको वो पर्टिकुलर रो का लॉक कर दो कि जब तक ये इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता विल शो 1 लेस क्वांटिटी इन आवर टेबल. तो ये जो रियल इंजीनियरिंग जो कि आपने अपने कोर्स में भी लिखा था डेटाबेस इंडेक्सिंग, कि लेट्स से अगर गूगल मतलब नॉट जस्ट हाँ लेट्स से गूगल में आप सर्च करते हो कुछ या तो अमेजोन में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो अगर आपके जो डेटाबेस में जो टाइटल पहले इंडेक्सिंग नहीं लगी तो आप रिट्रीवल फास्ट कैसे करोगे? बिल्कुल ट्रू. तो ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल बता रहा हूँ, बट सिस्टम डिज़ाइन में आप ये भी बोल सकते हो ऊपर डिज़ाइन कर दो. देन यू हैव टू नो कि अच्छा यार अब जियो बेस्ड इंडेक्सिंग कैसे करता है. आप कहीं हो और आपके ड्राइवर्स अलग अलग जियो लोकेशंस पे है, अब आपको नियरेस्ट ढूंढना है तो आपको इंडेक्सिंग करके रिट्रीवल करना पड़ेगा. तो ये इंजीनियरिंग अब ज़्यादा यूज़ होती आ रही. मतलब ज़्यादा पूछा जाएगा कि आपको वाकई में पता भी है वेयर दिस इज द वेयर यू फिल्टर आउट द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. जोसेफ एक कोडर है, प्रोग्रामर जिन्होंने लैपटॉप स्पेसिफिक जो SD1s आई थिंक I'm not saying SD1s ही SD2s बने, ठीक है. I'm not saying SD1s किसी काम के नहीं है, क्या वो ज़रूरत ही नहीं है, AI ही पूरा करते हैं. डिफरेंट रोल में भी हो सकता है कि वो भी सीधा भी यही करें क्योंकि अब AI है तो AI यूज़ करके आप डिज़ाइन आर्किटेक्ट भी कर सकते हो. एक्चुअली ऐसा हो गया कि ना कि when you use AI it's like somebody who's really fast. फ्लैश स्पीड पे आपके लिए एक बंदा लगा हुआ है. मतलब अब आप एक अकेले नहीं हो, आपके पास एक फ्लैश स्पीड पे भागने वाला बंदा है जो हाँ आपके लिए जो करके देगा वो एग्जैक्ट चलने वाली चीज़ नहीं होगी, बट इट वुड बी वेरी नियर. एंड आपको थोड़ी बहुत चेंजेस में करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी या रिमूव करनी पड़ेंगी टू गेट इट
work. So yeah, we're very very close. आई थिंक या स्मॉल पीस ऑफ वर्क डेफिनेटली वहाँ पे हमें एआई चाहिए भी था. मतलब अगर हमें ढूंढना पड़ रहा है सोल्यूशन, अगर हमें मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है, 4 अलग इंजीनियर्स पीयर्स से जाके पूछना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट था. मतलब आप कई बार लोग ऑफिस इसलिए जाते थे कि मैं अपने पीयर्स के साथ बैठ के जिसने पहले इस पे काम किया है उससे केटी ले लूँ, समझ लूँ कैसे होता है. Yes, अब एआई है ना उसके लिए. correct. तो इससे आपका जो टाइम वेस्ट होता था मीटिंग्स और कम्युनिकेशन में वो कम हो रहा है. तो नाउ यू कैन फोकस शिपिंग फास्टर एंड न्यू फीचर्स. Correct. So I have this question in my mind. This is about clarity over knowledge kind of question. So it's not for you. Actually, every session has some questions around students and what they want to, ask people like you. So the question is around if you will start from the start. Let's say the clarity you have currently with the same clarity but no knowledge. Okay. No knowledge. Like nothing. But you have joined computer science Very engineering. contradictory. Clarity but not knowledge. Like you have this kind of clarity, like this these are good sectors to work with, these are good spaces to be, these are good tech to learn. You have all of that, but if I ask you, like let's say you say Node.js is good to learn, and if I ask you what do you know about Node.js, you don't know much about it. That kind of clarity. Okay, you know what to learn and what to do, and you understand what is going on in the industry right now, but you don't know much about things. Okay, a lot of students are actually at the same spot. So I would like you to start your journey from day zero, right? How you'll go about things. आप अपना करियर वापस से कैसे टेक में सोचोगे कि यार ऐसा कुछ करेंगे. When you say टेक में क्या करोगे, एज इन की ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे क्या जमता है, कि and getting a job. गेटिंग ए जॉब. And getting a job. एंड गेटिंग ए जॉब मतलब मुझे एमएल ऑप्स में जाना चाहिए, डेव ऑप्स में जाना चाहिए, बैक एंड में जाना चाहिए, फ्रंट एंड में जाना चाहिए, राइट? दिस Kind of, yes. हाँ. ओके. आई थिंक आई वुड स्टिल डू द सेम जो मैंने पहले किया था. जब भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, you will never know which is the best option until you try all of them. At least टच करके आओ. Correct. तो मैंने भी कॉलेज में वही किया था. आई ट्राइड मल्टीपल थिंग और थोड़ा डीएसए जम गया मुझे. मैंने डीएसए पढ़ाया और साथ में मुझे थोड़ा एमएल जमा. तो मैंने साथ में ही अपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेने होते हैं अदर देन योर कोर सब्जेक्ट्स, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, मैं भूल गया क्या बोलते हैं, सब लाइक सप्लाई मे बी समथिंग, कि जो आपको अलग से 4 कोर्स अलग से लेने पड़ते हैं. वो मैंने इसमें एमएल लिया था. एक्चुअली आई टुक कंप्यूटर विजन. वो मुझे बहुत फैसिनेट आज भी लगता है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं खुद भी टाइम निकालना चाहता हूँ कि मैं अलग से कंप्यूटर विजन कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ, बट कर नहीं पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिलता. इवन कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द सेम थिंग, कंप्यूटर विजन. लाइक एक्चुअल बात ये है कि मेरे को बहुत कम टाइम मिल पाता है टू कोड और डू थिंग्स अराउंड दैट, बट आई रियली लव हाउ एआई इज ग्रोइंग एंड बहुत मजेदार स्ट्रीम लगती है. इट्स क्रेजी. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने अमेज़न में 4 महीने कंप्यूटर विजन विद एआई मतलब पिक अप. there's a thing called Just Workout. तो अमेज़न का ये एक फिजिकल स्टोर है जहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता है. इट्स ऑल कैमरा ऑपरेटेड. यू एंटर इनटू ए रूम, ये जहाँ पे लाइक स्मॉल शॉपिंग मार्ट, आप जाते हो, सामान उठाते हो, बाहर आते हो और आपका चेकआउट हो जाता है. देयर इज नो टच पॉइंट. तो बेसिकली उनके लिए है जैसे आप स्टेडियम्स में जहाँ पे बहुत हाई थ्रूपुट आता है, मतलब फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और आपको सबको सर्व करना है क्योंकि ब्रेक बहुत छोटा होता है, तो बर्स्ट आता है. तो वो तभी हो पाएगा जब आप सारे टच पॉइंट हटा दो. तो वो एक्सपेरिमेंटल एरिया जहाँ अमेज़न काम कर रहा है, जस्ट वर्कआउट एंड ओनली अमेज़न. ये जो आप सीवी के बारे में बात कर रहे हो, लाइक कंप्यूटर विजन, सो डू यू थिंक इसके में भी एक अच्छा फ्यूचर है? बहुत बड़ा फ्यूचर है एक्चुअली, नॉट जस्ट अच्छा. आई थिंक थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि अब वेरी बेसिक एग्जांपल कि लेंसकार्ट की ऐप पे I have seen that. Yeah. That is computer vision. Yes. It recommends कि तुम्हारे चेहरे के हिसाब से. Correct. And there are not many people who are very good with it. Exactly. Supply बहुत कम है computer vision. Correct. And I was very fortunate again कि मैं one of the like great minds के लोगों के साथ मैं काम किया था बहुत short time के लिए. Then I joined Google. I was again fascinated. So I always wanted to, but वो हो नहीं पा रहा. Again, coming back to the original question, I would still touch
all the options that I have, or at least I have filtered out कि यार ये 4 ऑप्शन मुझे अच्छे लग रहे हैं कि let's say आप बीकॉम भी करें तो आपके पास 4-5 ऑप्शन है करने के आगे क्या परस्यू करना है, सीए बनना है कि एनालिस्ट बनना है, क्या बनना है. तो वैसे हमारे इसमें भी 4-5-6-7 हो सकते हैं 10 ऑप्शन होंगे. तो विल फिगर आउट, डू सम फिल्टरिंग, अपने आसपास के लोगों से बात करूंगा, अपने सीनियर से पूछूंगा जो ऑलरेडी जॉब सेक्टर में है, उनको कनेक्ट करूंगा लिंक्डइन पे. Correct. या तो शेरियंस कोडिंग स्कूल पे जाऊंगा, वहां पे देखूंगा क्या पढ़ा रहे हैं. People can connect with you, by the way. Yeah, we'll be actually Yeah. providing the link to his LinkedIn as well, and his YouTube channel as well. By the way, I'm so sorry I didn't mention it yet, but guys, you should definitely give a proper view on his channel. Can you please tell us the name? Yeah, it's Anubhav in Tech, and I try to post at least once, like one video per week, but it's now once per month because Actually, I try. Actually, it's same with my own personal channel. Yeah. I don't get much time enough Same to here. actually make videos. This my current job is like most of my bandwidth goes in, and then rest of the weekends mostly in with the families. Yeah, same. But I'll try my best कि मैं कुछ अच्छे कंटेंट, हम साथ में कुछ अच्छा कंटेंट. Definitely करनी है, उसमें कोई doubt ही नहीं है. And Anubhav, this is the last question, okay? This personal to them. If anybody who's really good, I showed you the syllabus as well, right? A lot of students study from Sharians, and if someone who's really good, 360 degrees, will you refer them? Yeah, definitely, man. Why not? Perfect. So anyone who's watching, guys, please put in the hard work, and you'll definitely learn. I think not just me. Like if you reach out with all your work, with all your testimonials, with all your projects that you have Correct. made so far, maybe with Sharians or along with your personal projects, anyone will be like so willing to refer. Correct. I think this is how we grow and they grow. Correct. And we have a lot of people who will refer if you have amazing work on your resume, and if you have done pretty good job when it comes to creating good projects and like having a decent understanding of what real engineering looks Yeah. like. Perfect. So thank you very much, Anubhav. Yeah, thank you so much. I believe बहुत अच्छी value हम offer कर पाए होंगे audience को. Guys, please share your reviews, your comments, and कैसा लगा आपको overall podcast in the comment section. There's more coming on this channel, and here's the subscribe button. By the way, you can definitely hit that. So you can check Anubhav's channel. It's Anubhav in Tech. Anubhav in Tech, and it's also mentioned in the description, so you can click the link and Yeah. straight away land on his channel from here. Yeah, so let's do good things together, because amazing content is gonna come on this channel after this video as well. So thank you very much for watching. Thanks, guys. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.